ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. وقال امام زین العابدین علیہ السلام ما بالمکة والمدینہ 20 رجلا یحبنا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول کہ قتل امام حسین کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے، اور ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ قول کہ ما بمکہ والمدینہ، کہ مکے اور مدینے میں 20 رجلا 20 افراد یحبنا نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہوں. چونکہ جو ہمارا عنوان ہے آج کا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا، جیسے بیعت کی طلب پر امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا معلی آئے، اور کربلا معلی آ کے انہوں نے باقاعدہ ایک جہاد کیا، جنگ لڑی اور شہادت آپ کو نصیب ہوئی. آپ کے اعوان و انصار کو قتل کیا گیا. بے عینی اسی طرز پر چلتے ہوئے ہمارے چوتھے امام نے کام کیوں انجام نہیں دیا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے سر فہرست جناب مختار نظر آتے ہیں کہ جناب مختار باقاعدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے ایک حکومت قائم کی جس کی مدت بہت کم تھی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا جائے. اور جس نے جناب مختار پر جو سیریل ہے وہ دیکھا ہوگا، مختار نامہ، اسے اچھی طرح وہ چیزیں معلوم ہیں. وہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جو کہ بدلہ لینے کا حق کس کو تھا، انتقام لینے کا سب سے زیادہ حق کسے ہونا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام. جو کام جناب مختار نے کیا وہ کام کسے انجام دینا تھا؟ ہمارے چوتھے امام کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کسی طرح کا کوئی اقدام کہ جو انتقام خون امام حسین علیہ السلام کے نام پر وہ انجام نہیں دیا ہے. بلکہ صرف یہی نہیں، جو لوگ یزید کے خلاف ہوئے، جو تحریکیں کربلا کے بعد انجام پائیں، کربلا کے نتیجے میں لوگوں کی بیداریوں کو دیکھتے ہوئے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کوئی کردار نہیں ہے. جناب مختار والے مسئلے میں اگر دیکھیں گے آپ تو جناب مختار کو نہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کوئی مشورہ دیا ہے، نہ کوئی اسلحہ فراہم کیا ہے، نہ کوئی اموال پیش کیے ہیں، نہ کسی طرح کی کوئی آپ کو پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے. جو کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب جناب مختار کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام اگر خود قیام نہیں کر رہے ہیں، تو اگر ایک شخص انتقام خون حسین کے نام پر قیام کر رہا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ خود آتے اور آنے کے بعد مختار کا ساتھ دیتے، مختار کی قیادت کرتے، اس حکومت کو سنبھالتے. لیکن ہمیں ایسا امام کے کردار میں دیکھنے کو نہیں ملتا. دوسری جانب آپ دیکھیں گے تو مکے میں عبداللہ ابن زبیر نے باقاعدہ اپنی حکومت قائم کی، کئی سال تک اس کی حکومت رہی. وہ بھی یزید کا مخالف تھا. امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی یزید کے مخالف ہیں. دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دشمن کا دشمن تو دشمن کا دشمن بھی کیا ہو جاتا ہے؟ دوست ہو جاتا ہے. اس بنا پر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کس کے پاس پہنچے ہوں؟ عبداللہ ابن
जुबैर के पास पहुंचे हों, मुख्तारनामे में आपने देखा होगा, न वहां जाते हैं, न उनसे किसी तरह की मदद तलब करते हैं, न उन्हें कोई शाबाशी देते हुए नजर आते हैं, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारा और तुम्हारा दुश्मन क्या है? एक है। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि जाते इमाम मक्के जाते और अब्दुल्ला इब्न जुबैर का साथ देते। तीसरा मौका अगर हम देखेंगे तो मदीने के अंदर बाकायदा बगावत की गई। जो बगावत हुई उस बगावत में इमाम खुद मदीने के अंदर मौजूद है। ये तो चलिए कूफे में तहरीक हुई जनाब मुख्तार की, मक्के में हुई करबला के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर की। लेकिन वही एक तहरीक पाई जा रही है खुद मदीने के अंदर कि मदीने वालों ने यजीद की बैयत को तोड़ दिया। जब यजीद की बैयत को तोड़ दिया तो इमाम को बाकायदा साथ देना चाहिए था कि इमाम ने बैयत नहीं की थी, उनकी हौसला अफजाई करते, उनके साथ आते। लेकिन हमें उसमें भी देखते हैं कि इमाम किसी तरह का रोल अदा नहीं करते, न उनकी क़यादत कर रहे हैं, उनकी मदद फरमा रहे हैं। खुद मदीने के अंदर मौजूद है, पूरा मदीना ताराज कर दिया गया, लेकिन इमाम का घर महफूज है और इमाम उस पूरी तरह से तहरीक से अपने आप को अलग किए। चौथा मौका हमें देखने को मिलता है खुद कूफे में ही। कूफे में जनाब मुख्तार के साथ दो तरह के गिरोह थे। एक खुद जनाब मुख्तार का गिरोह था कि जो बाकायदा इंतकाम लेना चाह रहा था। एक गिरोह वहां वो था कि जिन्होंने बाकायदा बैयत की थी जनाब मुस्लिम के हाथों पर, और लेकिन किसी भी वजह से वो अपने आप को रूपोश कर ले गए, जनाब मुस्लिम का साथ नहीं दिया और करबला भी नहीं पहुंचे। जब करबला भी नहीं पहुंचे तो उनके अंदर एक निदामत थी। इसीलिए जो वो लोग शहीद हुए उन्हें कहा जाता है अव्वाबीन, जिनकी तादाद तकरीबन 4000 अफराद की थी। और बाकायदा इन्होंने सुलेमान बिन सर्द खिजाई की क़यादत में शाम के रास्ते पर जंग की थी और 4 के 4000 अफराद शहीद किए गए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उन्होंने कफन पहन के बाकायदा जाकर उन्होंने उस नहर से, सही है, अपने आप को गुस्ल दिया और गुस्ल दे के फिर जंग की है। इरादा ये था मुकम्मल तौर पर कि जब हम इमाम हुसैन का साथ नहीं दे पाए तो हमें दुनिया में जीने का हक नहीं है। हमें तब तक लड़ना है कि जब तक हम कत्ल न हो जाएं या खुद यजीद को न मार दे। उनका ये इरादा था कि बुराई की जड़ को खत्म किया जाए, और वो यजीद को बुराई की जड़ समझते थे। उसी को कत्ल करने के लिए वो शाम की तरफ रवाना थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी जंग होती है और सारे के सारे शहीद किए जाते हैं। इन सब मकामात पर हमें इमाम ज़ुमरातीन अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते। जो कि जो असले वारिस होता है, इंतकाम का हक सबसे पहला उसका है। चाहिए तो ये था चाहिए तो ये था कि इमाम, 4 तहरीकें हैं इमाम की जिंदगी में। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहली तहरीक हुई मदीने के अंदर, फिर तहरीक है मक्के के अंदर, उसके बाद जनाब मुख्तार और सुलेमान बिन सर्दे फिजाई। 4 तहरीकें हुई लेकिन इमाम ने किसी में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लिया। इमाम का एक लक़ब हमारे यहाँ ज्यादा मशहूर है, आबिदे बीमार, क्योंकि ये इमाम का लक़ब नहीं है, ये हमारा और आपका दिया हुआ लक़ब है। सही है। जब हम इमाम के अल्काब को किताबों में देखते हैं तो हमें इस तरह का कोई लक़ब देखने को नहीं मिलता। जब हम आबिदे बीमार कहते हैं तो ऐसा लगता है कि इमाम पूरी जिंदगी क्या रहे,
बीमार रहे, जबकि ऐसा नहीं है। आशूर के कुछ अय्याम थे कि जिसमें आप बीमार थे, बाकी आपने बाकायदा जो काम एक इमाम का होता है वो काम आपने अंजाम दिया। लेकिन तहरीक में शरीक ना होना, हमें ये देखना होगा कि ये जो तहरीकें हुई क्या पूरी तरह से अपने अज़्म इस्तिक़लाल में पूरी उतरती थी या नहीं उतरती। आया कहीं इन्हीं तहरीकों में कमी तो नहीं थी जिसकी बिना पर इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। और जब हम जायजा लेते हैं सबसे पहले मदीने का, जहां वाक़या हर्रा, मदीने में उस वक्त का गवर्नर था मोहम्मद बिन उस्मान इब्ने अबू सुफियान। यजीद का कौन हुआ? चचेरा। यजीद का क्या नाम है? यजीद इब्ने माविया इब्ने अबू सुफियान। इसका क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने अबी सुफियान। यानी उस्मान और माविया एक दूसरे के क्या है? भाई हैं। एक भाई का ये बेटा है, दूसरे भाई से मोहम्मद है। मोहम्मद नौजवान है, मदीने का हाकिम है ये वाक़या करबला के बाद। तो ये बात है सन 62 या 63 की, 62 में मान के चलिए कि जब इनको भेजा गया होगा। मदीने के अंदर शेमगोइयां शुरू हुई, बातें शुरू हुई कि क्या वाकई यजीद फासिक फाजिर है। जब ये गुफ्तगू शुरू हुई और ये बात वहां के हाकिम तक पहुंची, तो बाकायदा उस हाकिम ने एक तरकीब सोची कि सबको ऐसा करते हैं कि कुछ लोग चुने हुए अफराद मदीने के लें और इन्हें शाम भेज दिया जाए। ये शाम जब यजीद के पास जाएंगे, यजीद इनको इनाम इकराम देगा, तो जो ये बातें चल रही हैं मदीने वापस आके ये यजीद यजीद की तारीफ करेंगे और माहौल पूरा मदीने का बेहतर हो जाएगा। ये सोचकर उसने 10 अफराद अब्दुल्ला इब्ने हंजला के साथ, जनाबे हंजला रसूल के वो सहाबी हैं जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। उनके इंतकाल पे मलाइका ने उनको गुस्ल दिया था, तो उनकी एक अपनी फजीलत है। खुद जनाबे अब्दुल्ला ऐसे सहाबी के फर्जंद हैं, उनकी अपनी फजीलत है। इनकी क़यादत में 10 अफराद को बाकायदा शाम भेजा गया। शाम गए और जाके ये यजीद के मेहमान हो। इन्होंने कई बातें तो खुद देखी, कई बातें इन्होंने सुनी। जो इन्होंने देखा, यजीद का शराब पीना, बाकायदा नमाज का वक्त आता था चला जाता था, यजीद की महफिल जमी की जमी रहती थी। जो नाच गाना शराब होता था वो हो रहा है, और यजीद बैठा हुआ है, अजान हुई, लोग मस्जिद गए, नमाज पढ़ा, चले आए, लेकिन इससे कोई वास्ता नहीं है। तो कुछ बातें तो इन्होंने देखी, बंदर से खेलना और दूसरे काम इसका शराब पीना। कुछ बातें इन्होंने मोतबर अफराद से सुनी। सुनने के बाद इनका कहना था कि हम ऐसी ऐसी हमने बुराइयां देखी हैं कि हमें खौफ हुआ कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से पत्थर गिरे और हम यहीं पर हलाक हो जाएं। चलते वक्त इनको यजीद ने बाकायदा 50,000 या 1 लाख दिरहम सबको दिया, 10 को। तो 50,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम, ताकि इनके मुंह बंद रहें। यहाँ ये जाएं, जब मदीने वापस जाएं तो हमारी तारीफ करें, तमजीद करें और वाहवाही हो हमारी। जो मदीने का माहौल बिगड़ रहा है वो माहौल बेहतर हो जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब ये लोग मदीने वापस आए तो आने के बाद इन्होंने पूरी बातें जो सच्ची सच्ची थी, जो उन्होंने देखा था, मदीने में आकर बयान कर। जब बयान कर दी तो उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने यजीद की बैत गलत की है, और इस एहसास ने उन्हें बैत तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन सब ने मिलकर यजीद की बैत तोड़ दी। कायद बनाया अब्दुल्ला इब्ने हंजला को। अब यहाँ गौर तलब बात यह है, इमाम इसमें शरीक क्यों नहीं हो रहे? इमाम खुद मदीने के अंदर मौजूद है।
इन्हें कब पता चल रहा है फासिक व फाजिर होने का? सन 62 हिजरी में। इमाम मदीना कब छोड़ रहे हैं? सन 60 हिजरी। एक साल की अगर कैद मान लें हम, आप पूरा पूरा समझ लीजिए, सन 61 हिजरी असीरान अहले हरम कहाँ है? कैद में। मुहर्रम पहला महीना है, मैंने कहा पूरा जिलहिज तक आप कैद में। अगला साल आ रहा है, रबीउल अव्वल में तो पहुंच रहे हैं, सही है, बाकायदा पहुंच गए हैं। ये जंग हुई है उसके और बाद शव्वाल के करीब जंग हुई 63 में, सन 63 में। क्या इमाम जब बोल रहे थे कि यजीद फासिक व फाजिर है, इमाम की बात का इनको यकीन नहीं था? ये होना ये चाहिए था कि जब इमाम बैत नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये वाकई अहले बैत के चाहने वाले थे, तो इमाम की इत्तिबा करते हुए इन्हें भी बैत नहीं करनी चाहिए थी। इमाम कह रहे हैं कि यजीद फासिक व फाजिर है, मिस्ली ला युबायो मिसला, यानी बाकायदा इमाम ने फरमाया इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वा, कि हम अहले बैत नबुव्वत हैं, व मअदुमुर रिसाला, रिसालत की काने हैं, व मुख्तलफुल मलाइका, मलाइका हमारे यहाँ आते जाते हैं, बिना फतह अल्लाह व बिना खतम अल्लाह, इस दुनिया की इब्तिदा और इस दुनिया की इंतहा हमसे है। व यजीद रजुलुन फासिक, यजीद फासिक है, शारिबुल खम्र है, और कातिलु नफ्सिल मुहर्रमा, नफ्स मुहर्रमा का कातिल है, यानी बहन बेटी, सही है, माँ के रिश्ते तक को पामाल करता है। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा, यजीद जैसी की बैत नहीं करेगा। नुस्बिह व तुस्बिहून, हम भी सुबह करेंगे, तुम भी सुबह करना। अय्युना अहक्कु बिल बैअति वल खिलाफा, और हम देखेंगे कि कौन हम में से ज्यादा बैअत और खिलाफत का हकदार है। ये बातें इमाम ने किसी और से नहीं बल्कि मामून से कही, उससे कही थी, मरवान से कही थी। जब मरवान ने इमाम को यजीद की बैत का मशवरा दिया था, चलते हुए इमाम से मुलाकात हुई बाजारों में, और इमाम ने इमाम को मशवरा दिया कि आप बैत कर ले, तो इमाम ने मरवान से ये बातें कही थी। जब इमाम बातें कह रहे हैं, तो क्या ये बात लोगों तक नहीं पहुंची? इमाम के बैत कर न करने का सबब लोगों ने दरियाफ्त क्यों नहीं किया? भाई, पूरे वो अफराद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीने से चल रहे हैं, पता होना चाहिए, मदीने वालों को तशवीश होनी चाहिए कि आखिर इन लोगों ने बैत क्यों नहीं की, वजह क्या है? आज हमारे समाज में होता है कि नहीं, कोई एक बात होती है तो उसको उसकी जुस्तजू में सब लग जाते हैं। क्या मदीना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था? बहुत कोई बड़ा शहर नहीं था। आज जब आप मदीने जाएंगे तो समझिए मस्जिद नबवी से कम शहर था। मस्जिद इमाम अली उससे मिली हुई है, वो मदीने के बाहर हुआ करती थी। जन्नतुल बकी मदीने के बाहर हुआ करता था। ये तमाम, इनमें दूरियां और फासले थे, बाकायदा बीच में पहाड़ियां थी, यानी मदीना बहुत छोटा शहर था। अब ऐसी सूरत में क्या किसी को ये तशवीश नहीं हुई कि इमाम और इमाम के साथियों ने बैत क्यों नहीं की? उसकी वजह जानते, और उस वजह की बिना पे उन्हें भी चाहिए था कि बैत न करते। आम लोगों के पास ज्यादा वजह होती है कि अगर ये बैत नहीं कर रहे हैं तो इससे आप करवा लें, हम भी कर लेते हैं, लेकिन बैत सबने की थी। अच्छा, उस वक्त मान लिया कि जब इमाम जा रहे थे तो उन्हें यजीद के फासिक व फाजिर होने का पता नहीं था, लेकिन क्या कत्ल इमाम हुसैन भी उनके लिए सबब नहीं बना कि जो इमाम जैसी शख्सियत का कत्ल कर रहा हो, कि इमाम की जैसी शख्सियत का कत्ल गुनाह है या नहीं गुनाह है? सरासर, यानी अव्वल से आखिर तक अगर आप देखेंगे, इंशाल्लाह मैं कभी कोई और मौका होगा तो बताएंगे, कि इमाम का कोई एक अमल ऐसा नहीं है कि जिसके बिना पर इमाम को गुनाहगार ठहराया जा सके। एक काम भी इमाम का मदीने से लेके करबला में असरे आशूर तक
इमाम का एक गलती, इमाम का एक काम जिसकी वजह से ये कहा जाए कि किस बिना पर इमाम का कत्ल जायज। बैत का न करना कत्ल के जवाज को पैदा नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि मौलाए कायनात की जब हुकूमत हुई थी तो मौलाए कायनात के हाथों पर अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी बैत नहीं की थी, साद बिन अबी वकास ने भी बैत नहीं की थी, यही पे सर साद के बाप ने। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने बैत नहीं की थी मौलाए कायनात के नाम पर। क्या मौलाए कायनात ने उनके घर उजाड़े? क्या उनके घर पर आग लकड़ी लेकर जमा हुए? क्या उनके गर्दनों में फांसी का फंदा डाला? क्या उनके खिलाफ लश्कर भेजा? नहीं, इमाम ने उनको वैसे ही छोड़ दिया। जब मदीने के लोग बाकायदा यजीद की बैत तोड़ रहे थे उस वक्त खुद अब्दुल्ला इब्ने उमर सैयद घूम घूम के लोगों से कह रहे थे कि बैत न तोड़ो, बैत न तोड़ो, जो कि ये खुद मौलाना की बैत नहीं की थी इन्होंने। तो अगर बैत का न करना इस बात की दलील है, बैत तोड़ने वाले क्या तलहा और जुबैर ने मौलाए कायनात की बैत नहीं तोड़ी है? बैत की है, मौलाए कायनात के मना करने के बाद ये लोग चले गए मक्के। जाहिर है बैत का न तोड़ना अगर यही सबब होता है कि जो काम करबला के मैदान में किया गया, तो क्या पहले के खुलफा ने ये काम अंजाम दिया है? हमें सबकी सीरत अगर उठा के देखें, चाहे वो अबू बकर हो, उमर हो, या उस्मान या मौलाए कायनात, इसी तरतीब को अगर हम लेकर चलेंगे, सबकी सीरत को उठा के देखेंगे, तो क्या किसी ने बैत के न करने पर यह काम अंजाम दिया कि जो करबला में अंजाम दिया गया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अमल कोई नहीं बता सकता कि जिसकी वजह से कत्ल को जायज ठहराया जा सके। ऐसे में क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत को कत्ल करना यजीद के फासिक और फाजिर होने के लिए काफी नहीं था? जो एक फासिक किसको कहते हैं? फासिक कहते हैं किसको? जानते हैं कि नहीं जानते? जो खुलेआम किसी गुनाह को अंजाम दे। अलग ऐलान अगर कोई नाफरमानी कर रहा है, सर्रन आपने की है तो एक अलग मसला है कि वो मामला कहाँ तक है, आपका और खुदा के दरमियान है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुनाह आप अलग ऐलान कर रहे हैं तो आप इस्लाम की नजर में क्या है? फासिक हैं, है ना? काफिर नहीं है लेकिन फासिक तो है। अब ऐसी सूरत में कत्ल इमाम हुसैन जो बेजुर्म और खता कत्ल किए जा रहे हैं, क्या इमाम का कत्ल यजीद के फासिक और फाजिर होने के लिए काफी नहीं था? असीरान अहले हरम के साथ जो सलूक किया गया कि यजीद के फासिक और फाजिर होने के लिए काफी नहीं था? जब ये काफिला मदीने पलट के आया तो इनके पलट के आने कत्ल इमाम हुसैन के बाद ही उन्हें चाहिए था कि वो यजीद की बैअत तोड़ देते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यजीद की बैअत नहीं तोड़ी, यजीद की बैअत पे बाकी रहे। जब उनमें से कुछ अफराद मक्के जाते हैं, शाम जाते हैं, और जाने के बाद बाकायदा ये पता लगा के आते हैं कि यजीद के काम ऐसे ऐसे हैं, तब जाके उनकी बातों को अहमियत देते हुए उन्होंने बैत को तोड़ा। क्या इमाम हुसैन उनके लिए अर्जिश नहीं रखते थे? क्या इमाम हुसैन की अहमियत उनकी निगाहों में कुछ नहीं थी कि इमाम अगर कुछ फरमा रहे हैं तो इमाम की बात को अहमियत दी जाए? फिर जब ये तहरीक हुई, इन्होंने बैत तोड़ी, और बैत तोड़ने के बाद जो मदीने का गवर्नर था उसको मदीने से बाहर करने में कामयाब हो गए। मोहम्मद बिन उस्मान को वहां से निकाल भगाया। निकाल के भगाने में इमाम से इन्होंने कोई मशवरा नहीं लिया। न इमाम के पास आए कि आप हमारी क़यादत कीजिए, इमाम मदीने के अंदर मौजूद हैं, न बैत तोड़ने के लिए उन्होंने इमाम से कोई मशवरा लिया, न उसको बाहर, जो वहां का वाली था, उसको बाहर निकालने में इमाम से कोई मदद ली। अब ऐसी सूरत में इमाम उनकी तरफ नुसरत का हाथ किस तरह से बढ़ाए? दूसरी खामी उनके अंदर थी कि वलवले के में उन्होंने मोहम्मद बिन उस्मान को वहां से निकाल बाहर कर दिया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि इसके बाद हमें करना क्या है। अगर हम खलीफा बनाएंगे तो बनाएंगे किसको, क़यादत देंगे तो देंगे किसको? ऐसे कोई शख्सियत, कोई प्लानिंग उनके अंदर मौजूद नहीं थी। बस उन्हें अपने
बैअत के गलत होने का जहां एहसास हुआ, उन्होंने बैअत को छोड़ दिया है। इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम वही मौजूद है, लेकिन इमाम से किसी तरह की कोई मदद नहीं ली जा रही है। दूसरा मसला देखा जाएगा मुख्तार सक़फ़ी का। जनाब मुख्तार अहले बैत के चाहने वाले हैं। करबला में न इनका होना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कैद में होना है, करबला में इसलिए मौजूद नहीं थे। बाद में जब इन्होंने क़याम किया, बाकायदा मशवरे के लिए इमाम को खत लिखा है, इजाजत चाहिए है, लेकिन इमाम उस पर खामोश है। इमाम ने कोई तहरीरी शफही जवाब नहीं दिया। मुख्तार ने जो कारनामा किया वो एक अजीम कारनामा है, लेकिन इमाम बराह रास्त उसमें किसी तरह शरीक नजर नहीं आते। एक इल्लत तो ये है जो मैंने हदीस आपको सुनाई छठे इमाम की कि इर्तद्दन्नासु बादल हुसैन इल्ला सलासा, कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मुर्तद हो गए थे सिवाय 3 लोगों। या हमारे चौथे इमाम का ये फरमाया मा बिमक्का वल मदीना इशरून रजुलन युहिब्बुना, कि मक्के और मदीने में 20 लोग भी नहीं हैं कि जो हमसे मोहब्बत करते हों। ऐसी सूरत में जो लोग इंतकाम ले रहे हैं, अगर इमाम मैदान में आते हैं, इमाम कोई अमली शक्ल में कोई कारनामा अंजाम देते हैं, या इमाम कोई बयान देते हैं कि नहीं तमाम शियों पर फर्ज है कि वो जनाब मुख्तार का साथ दें, ऐसी सूरत में क्या होता? ऐसी सूरत में ये होता कि जहां जहां शिया जो चाहे वो कम थोड़े बहुत थे, वो सारे के सारे इमाम की इताअत करते हुए क्या होते? बाहर आ जाते। और नतीजे के तौर में बचे कुछ शिया भी क्या कर दिए जाते? कत्ल कर दिए जाते। इमाम की खामोशी का सबब ये भी है कि जो थोड़े बहुत शिया मौजूद हैं, चूंकि कत्ल इमाम हुसैन के बाद लोगों में खौफ व हिरास बहुत ज्यादा था। खौफ व हिरास का सबब ये था कि जो शख्स इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत को बयान न करने पर बख्श नहीं रहा है, वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा? भाई इमाम हुसैन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इमाम हुसैन फर्जंदे रसूल हैं, फर्जंदे फातिमा है, फर्जंदे मौलाए कायनात। उस वक्त की एक अजीम शख्सियत है, आपकी शख्सियत के मुकाबले में कोई पूरी कायनात में मौजूद नहीं है। जब ऐसी शख्सियत को यजीद कत्ल कर सकता है तो हम और आप क्या हैं? इसी एहसास ने लोगों के दिलों को और बैठाल दिया था और उनके दिलों में बुज़दिली को खड़ कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो भी क्या हो गए थे? रूपोश हो गए थे। मजमूई तौर पर तहरीकें हमें नजर नहीं आती हैं, इज्तिमाई तौर पर। जो सुलेमान बिन सर्द खिजाई का भी है तो ये कब है? यजीद की मौत के बाद है, यजीद के आखिरी वक्त में है, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मतें मौजूद नहीं थी, इन्होंने इंतजार किया है। तो या जब जनाब और फिर जनाब मुख्तार के यहाँ भी एक कमी हमें नजर ये आती है कि जनाब मुख्तार की हुकूमत को हासिल करना, उनका हुकूमत कायम करना मकसद नहीं था। दोनों नजरियात में, सुलेमान बिन सर्द खिजाई में और जनाब मुख्तार में फर्क सिर्फ ये है कि जब दोनों को इंतकाम लेना है, एक को सिर्फ और सिर्फ सुलेमान बिन सर्द खिजाई के साथियों को सिर्फ और सिर्फ जान देनी है, और जनाब मुख्तार और मुख्तार के साथियों को बाकायदा जान भी देनी है और इंतकाम भी लेना है। और इंतकाम लेते हुए जान चली जाए ताकि शहादत की उसको शहादत नसीब हो। अब ऐसी सूरत में जनाब मुख्तार की हुकूमत भी है तो किस लिए है? हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंतकाम खूने हुसैन है। मुस्तकिल हुकूमत कायम करना उनका मकसद नहीं था, न उसके उसके लिए उनके पास कोई प्लान था। इन तमाम वजूहात की बिना पर इमाम ऐसी सूरत में किस तरह से जनाब मुख्तार की तायीद करते, चाहे उन्हें अलल ऐलान किसी तरह की मदद करते या अपने शियों को हुक्म देते कि सबके सब इनका साथ दें। मालूम है इमाम को कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। जनाब सुलेमान बिन सर्द खजाई हैं,
انہیں صرف اور صرف اپنی جان دے. یہ انہیں احساس ندامت تھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے برابر میں شہید کر دیے گئے، جس کی بنا پر وہ امام حسین کی نصرت نہیں کر پائے. اسی احساس شرمندگی میں وہ اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہوئے تھے. امام کی خاصیت ہوتی ہے، یا عبداللہ ابن زبیر کو دیکھیں. عبداللہ ابن زبیر جو یزید کا مخالف ہے، یزید کا مخالف جانتے ہیں کیوں ہے؟ یزید کا مخالف ہونا اس کا یزید کا فاسق و فاجر ہونا نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن زبیر خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں اور یزید خلیفہ ہے، اس لیے وہ یزید کے مخالف ہیں. تو امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر میں ایک نمایاں فرق ہے. امام حسین اگر اختلاف کر رہے ہیں یزید سے تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر اختلاف کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ کر رہا ہے. پھر وہ دشمن ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اکیلے ہم بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی اگر ہمارے دشمن کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کیا کریں، جا کر مل جائیں اور اپنے دشمن سے ہم بدلہ لے لیں. یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، امام کا مزاج ایسا نہیں ہے. امام ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. امام کی ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ امام کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ورنہ تو جب جناب حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی تھی تب جناب زہیر نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا، مولا ابھی یہ 1000 ہے، ان سے ابھی نپٹ لیتے ہیں، ان سے نپٹنا آسان ہے. اس کے بعد اگر ان کا لشکر زیادہ ہو جائے گا تو پھر ان سے مقابلہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. ظاہر ہے امام وہ ہوتا ہے، ہم اور آپ ہوتے کرتے ہیں. بہترین موقع یہی ہے، آ جاؤ یہی فیصلہ ہو جائے گا کیا کرنا ہے. کیونکہ امام کی ذات کو ذات ہوتی ہے، کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کبھی کسی کو اپنے ساتھ ایسی صورت میں نہیں رکھتے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کے باقاعدہ امتحان لیا ان کا، اور ان سے بیعتوں کو اٹھا لیا اور انہیں اجازت دی کہ چلے جائیں. لیکن اس کے باوجود جب کوئی نہیں گیا ہے تب امام نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا. ایسا نہیں ہے کہ بیکار بھاگے جا رہے ہیں انہیں پکڑ کے لا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. نہیں، تاریخ میں کوئی وہ نہیں ملتا. ایک ہمیں ملتا ہے ضحاک ابن عبداللہ یا عبداللہ ابن ضحاک، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شرط رکھ کے آیا تھا کہ آپ کا ساتھ میں تب تک دوں گا جب تک آپ کے اصحاب زندہ رہیں گے. تو جب امام کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی شہادت واقع ہو گئی، وہ امام کے پاس آیا کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میرا وعدہ پورا ہوا، اب میں اپنے اندر آپ کا دفاع کرنے کی سکت نہیں پاتا، آپ مجھے اجازت دے دیجیے. امام نے کہا جاؤ، لیکن اتنی دور جانا کہ مجھے تمہیں اس طرح سے کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے. تو امام کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اور امام صرف اور صرف کوئی امام ہوگا تو وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتا بلکہ اسے پوری امت کا خیال رکھنا ہے. اسے دیکھنا ہے جہاں شیعہ اتنے کم بچے ہوں، ایسی صورت میں اگر امام قیام کرتے ہیں تو جو بچے کچھ شیعہ ہیں وہ بھی امام کے ساتھ شامل ہوں گے. جنگ ہوگی اور سارے کے سارے مارے جائیں گے. ایسے جو بچے کچھ شیعہ ہیں دنیا میں وہ بھی کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. اسی لیے امام نے حکمت آمیز زندگی گزاری. 35 سال کی آپ کی زندگی ہے بعد شہادت امام حسین. سن 60 سے اگر آپ لیں، محرم تو پہلا ہی مہینہ ہے، صحیح ہے. سن 10 ہجری سے یعنی 10 محرم سن 61 ہجری سے آپ امام ہیں، تب تک 25 محرم الحرام سن 95 ہجری تک، 95 ہجری تک. یعنی یہ آپ کی مدت امامت کتنے سال ہے؟ 35 سال ہے. اس 35 سال میں جو آپ کا طریقہ تبلیغ ہے، دعاؤں کے ذریعے سے جو اپنے شیعوں کو معراج پر پہنچایا ہے، ان کی حفاظت کی ہے اور ان تک پیغامات پہنچائے ہیں،
یہاں تک کہ قرآن کی تعلیم میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے مشورے اور اپنے علم سے لوگوں کو بات دی ہے۔ باقاعدہ ایک مشہور واقعہ ہے زہری کا کہ کچھ لوگ باقاعدہ مباحثہ کر رہے تھے کہ قرآن میں صرف ایک ہی روزہ واجب ہے۔ امام نے کہا ایک روزہ نہیں، قرآن میں 10 طرح کے روزے واجب ہیں۔ سب حیرت میں پڑ گئے کہ روزہ تو ماہ رمضان ہی کا ہوتا ہے۔ تو امام کے کام آسان نہیں تھے کہ ایسے گھٹن بھرے ماحول میں زندگی کا گزارنا کہ جہاں کوئی یزید کے خلاف بولنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر امام قیام کرتے تو امام کی زندگی کے لیے بھی اور باقی بچے شیعوں کی زندگی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ ظاہر ہے امام کی ایسی زندگی گزارنا آسان نہیں تھا کہ جہاں انتقام بھی لینا ہو لیکن ساتھیوں کی کمی ایسی ہے کہ وہ انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ ورنہ امام حسین دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں، جب امام حسن علیہ السلام نے بیعت صلح کر لی تھی، صلح کر لی تو کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کے بھائی نے تو صلح کر لی ہے، چلیے ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، شام پہ حملہ بول دیتے ہیں۔ امام نے کہا کلا، جب صلح ہو گئی ہے تو جب تک یہ صلح ہے اس صلح کی پاسداری کی جائے گی۔ تو امام کی ذات یہ ہے کہ نہ کسی کا مشورہ ان کے لیے کسی کام کا ہے، نہ کسی کی رائے کو وہ پسند فرماتے ہیں، نہ کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اپنے چاہنے والوں کی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں، نہ کبھی مجبور کر کے انہیں جان دینے پر آمادہ کرتے ہیں کہ نہیں تم نے بیعت کی ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ صحیح ہے، کربلا کے میدان میں ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ایسا کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا کہ جب آپ نے اپنے اصحاب سے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو 35 سال ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے گزارے ہوں گے کس مشکل بھرے حالات میں گزارے ہوں گے۔ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ائمہ کی سیرت، ان کی زندگی کو جاننے کی خدا توفیق عطا فرمائے اور جاننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔